हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। दैट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर of political science, class 12 CBSE NCERT political science here. But next question arrive here, that's an important question here. Examine the difference area of agreement and disagreement with the respect to the model of economical development to be adopted in India after independence. That's an important question here for the exam view. Examine the difference area of agreement and disagreement with the respect to the model of economical development to be adopted in India after independence. That's important here. The agreement of economic model after independence, there were a lot of discussion with respect to the model of economic development to be adopted in India. And that's important. Agreement of economic model after the independence, there were a lot of discussion with respect to the model of economical development to be adopted in India. Development was about becoming more modern, and modern was about the become more like the industrialized country of the West. That's important here. There's a more like the industrialized country of the West. India planner did not follow any of two now model of the development. India planner did not follow any of two now models of development, capitalist model of development and socialist model of development. That's important. India planner did not follow the two model of development, capitalist and socialist. India adopted both element of this model. That is why India economy is called mixed economic. India is not go away here a capitalist model and development and social model of development. India's goes be to here a mixed economics development here. That's reasons a private sector and public sector flourish well. In Indian state controlling the key industry and providing industrial infrastructure. And disagreement of economical model of mixed economy was criticized by many scholars, and they agreed that the planner had refused the private sector with enough space in the estimates to grow. The enlarged public sector provide a powerful vested interest that will enough hurdles for a private capital by way of the installing the license and permit a system. That's important here. The enlarged public sector provided a powerful vested interest that will enough hurdles for a private capital by way of the installing their license and permit system here. And some critics have an opinion that the era of public sector where poverty did not be declined, even number of poor were adversely increased. That is a bad effect here. Did not be declined, even number of poor there is increase. The public sector did not spend much of money of health care and education. That's important point here. The public sector did not spend much money on the health care and education. The state intervenes into area where a private sector made up profits. The policy of state restricted import of goods and production in their domestic market here. There are no campaigns left the private sector with no incentive to be improve their products and make them cheaper. That's important here.
कि little or not champions left the private sector with no incentive to be improve their products and make them to the cheaper. After all, this capitalism government adopted the policy of globalization and liberalization and privatization in a 1991. That's important here. There is the capitalism government adopted their policy of globalization, liberalization and privatization in 1991. This policy is called New Economic Policy, where private firms enjoy their independence and government interfere only in economic matters here. That's important point here from exam view. हम जो यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के यहाँ पर जो चैप्टर है। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से, और देखा जाए तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कहते स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में सहमति और असहमति के विभिन्न क्षेत्रों पर परीक्षण करें। मैं बता दूं इस क्वेश्चन की गहराई क्या है। इस क्वेश्चन की गहराई ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय दो विचारधारा थी। कुछ व्यक्ति जो थे कहते हैं साम्यवादी की तरफ अपना विचारधारा रखते थे, तो कुछ व्यक्तियों का विचार जो है पूंजीवादी की तरफ था। कोई हमें साम्यवादी अपनाने के लिए कह रहे थे, तो कुछ विचारधारा जो थे पूंजीवादी की तरफ थे। अब इस दुविधा भरे समय काल में हमें उसको अपनाना था जो हमारे लिए आगे चल के एक आदर्शमय भारत की स्थापना करने में सहयोग दे सके। इसलिए देखा जाए तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ये दो परिस्थिति काफ़ी विकट थी कि हम साम्यवादी की तरफ जाएं या पूंजीवादी की तरफ जाएं। क्वेश्चन यही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में सहमति और सहमति के बीच क्षेत्रों का परीक्षण करना है कि आखिर उनमें कैसे सहमति बनी और हमने किस चीज़ को अपना के आगे बढ़ा। क्योंकि दुनिया जो थी दो खेमों में उस समय बटी थी, एक साम्यवादी जिसको यूएसएसआर कंट्रोल यानी सोवियत संघ कंट्रोल कर रही थी, और एक पूंजीवादी जिसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। और भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। भारत किसी भी एक खेमे में जाने में समर्थ नहीं था, और भारत नहीं चाहता था कि किसी एक खेमे का जो है पिट्ठू बन के रहा जाए। इसलिए भारत ने अपने आप को अलग थलग रखा। और देखा जाए तो आर्थिक मॉडल पर सहमति आज़ादी के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में काफ़ी चर्चा हुई, और उसमें जो कंक्लूजन निकला वो काफ़ी दिलचस्प था। कहते विकास अधिक आधुनिक बनाने के बाद में था और आधुनिक पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरफ बनने के बाद में था, कि विकास को जो है पश्चिमी देशों की औद्योगिक की तरफ ले जाने की बात थी। लेकिन भारत इन दोनों मॉडल में से किसी भी एक को अपनाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि दोनों को अपनाना भी संभव नहीं था। इसलिए भारत देखा जाए तो भारतीय योजनाकारों ने विकास के दो मॉडल अर्थात विकास का पूंजीवादी मॉडल और विकास का समाज मॉडल में किसी भी का पालन नहीं किया, क्योंकि दोनों खेमों में जाना संभव नहीं थी और नहीं दोनों खेमों से अलग भी रहना संभव नहीं था। तो हमें ऐसा रास्ता अपनाना था जिससे हमारे देश का विकास हो सके। भारत ने इन मॉडलों दोनों तत्वों को अपनाया, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी भारत दोनों खेमों में ना जाके दोनों खेमों के कुछ कुछ गुण जो है अपनाए, इसलिए भारत के इन दोनों मॉडलों के तत्व अपनाए, और इसलिए भारत के जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिक्स इकोनॉमिक्स को भारत ने अपनाया, यानी दोनों के आधे आधे गुण से जो है भारत ने मिश्र अर्थव्यवस्था का जो है
सूत्रपात किया। निजी क्षेत्र और सभी क्षेत्र अच्छी तरह से फले फूले। देखा जाए तो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण भारत के निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो थे काफ़ी फले फूले और आगे बढ़े। भारत में राज्य में प्रमुख उद्योग को नियंत्रित किया गया और औद्योगिक बुनियादी ढांचा भी इसको प्रदान किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो आर्थिक मॉडल पर असहमति कई विद्वानों द्वारा मिश्र अर्थव्यवस्था की आलोचना भी की गई। देखा जाए तो बहुत से विद्वानों ने मिश्र अर्थव्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के लिए प्रोत्साहित देने से इनकार कर दिया था, और ऐसी बात नहीं थी कि हमने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के प्रोत्साहन देने से इनकार किया था। हमने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को ही बुनियादी रूप से उसके औद्योगिक ढांचा को जो है मजबूती प्रदान करने की कोशिश किया गया। विस्तारित सार्वजनिक क्षेत्रों में शक्तिशाली नीति स्वार्थ प्रदान किए, जिन्होंने लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजी के लिए पर्याप्त बाधाएं भी खड़ी कर दी। कहते हैं कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। यहाँ पर लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजियों के लिए पर्याप्त बाधाएं अवश्य खड़ी हुई। कुछ आलोचकों का राय है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उस दौर में जहां गरीब कम नहीं हुई थी, गरीबी की संख्या में प्रतिकूल वृद्धि हुई थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ आलोचकों ने ये बात सही भी कही कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उस दौर में जहां गरीबी कम नहीं हुई थी, गरीबों की संख्या बढ़ी चली थी। और आधुनिक युग में कुछ समस्या इसी प्रकार से है। हम अगर आज आधुनिक युग की बात करें, यहाँ सरकार सबसे आगे अपने आप को समझ रही है, काफ़ी पीठ थपथपा रही है, तो इस समय उससे भी विकट समस्या है। आज दिन प्रतिदिन जो है गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और इवन बेरोजगारी की समस्या तो अपनी चरम सीमा पे है। अगर हम आज की तुलना करें पुराने समय से, तो आज का और भी बुरा परिस्थिति है। कहते हैं जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन देखा जाए तो हम काफ़ी आधुनिक भी हुए हैं। लेकिन आधुनिक होने के नाते हमने बहुत चीज़ों में जो है अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च नहीं किया गया। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि सार्वजनिक क्षेत्रों ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं मान्यता दी। राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र लाभ कमाता था, यानी राज्य ने उन क्षेत्रों पर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जो उस समय लाभ कमा रहे थे। राज्य की नीतियों ने घरेलू बाजारों में वस्तुओं के आयात उत्पादन को प्रतिबंधित भी कर दिया। और ये भी कभी महत्वपूर्ण है कि राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र लाभ कमाता था, और राज्य की नीति ने घरेलू बाजार में वस्तुओं के आयात और उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित भी किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचा था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कोई भी रास्ता बाकी नहीं था। देखा जाए तो तमाम आलोचना के बाद सरकार ने 1951 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई। क्योंकि देखा जाए तो जो मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाई गई, कई आलोचकों ने जो है इसकी आलोचना किया और कई लोग असमर्थ थे। इसीलिए देखा जाए तो इन सारे आलोचनाओं के कारण भारत सरकार ने 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का अनुसरण किया, जिससे हर लोगों को प्रोत्साहन किया जा सके। और इन नीतियों के नई अर्थव्यवस्था नीति भी कहा गया, जहां निजी कंपनियां अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है और सरकार केवल आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि निजी कंपनियां अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती है, कि निजी कंपनियों में कोई तरह की पराधीनता नहीं रहती है, वो आज़ाद रहती है। सरकार सिर्फ आर्थिक मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। Assess the outcome of the early phase of planned development in India. You know that is an important question for the exam view here. Assess the outcomes of the early phase of planned development in India. You know that is an important question for the exam view here. In 1938,
Indian National Congress set up a planning committee to be formulate a plan from development of India's future. That's important here. The Indian National Congress set up planning committee to the formulate a plan for the development of India's future. After independence in April 1951, India adopted two plan development procedure here. That's important for the MCQ exam regarding here. First of all here, April 1951, India adopted to the planet development procedure here. It was felt that a procedure of planet development create a sound economic development and land reform here. And some points which are related with the planet development toward the foundation of Indian as economics, growth and land reform are the mentioned below here. Some point which relates with the planet development toward the foundation of India as economics, growth and land reform are mentioned below here. That's important point here. In 1950, Government of India passed a resolution and set up their planning commission to the prepare a plan for the most effective and balanced utilization of the country resources. That's important point here. In 1950, the Government of India passed a resolution and set up their planning commission to be prepare a plan for the most effective and balanced utilizations of the country's resources here. The Planning Commission initiated their process of development which would be increase the living standard and provide to new opportunities here. According to the long-term objectives, originally it was to be double the per capita income and rise to communication standard by 70% by 1977. That's important point here. According to the long-term objective, here a per capita income and rises to communication standard by the 70%. By the time period here, 1977. The first 5-year plan brought with it on era of a planet country with a total outlay of 2249 acre which had to twofold aim. That's important here. There is a 2249 means 2249 crore which had twofold aim. The revolution like a green revolution attained the record of production of the food for the 75.6 million ton. That's the revolution here. 75.6 million ton here production. The Kerala model was also very effective in terms of land reforms and public distribution system, poverty alleviations and health and literacy rate here. Jamindari system was abolished and consequently lands were to the disturbed among the landless farmer. That's important here. Jamindari system was abolished and consequently lands were distributed among the landless farmer here. And also white revolution and blue revolution rise the development of country. That's important. The white revolution and blue revolution rise the development of country. In 1990, we adopted the mixed economy due to this planning of development and increasing and allowed to the investment in a public sector also. That's important. 1990, we adopted the mixed economy due to this planning of development increasing and allowed to the investment in a public sector also. And research what technologies in a field of agriculture has been to adopted. Therefore, India become a self-sufficient in food. The India become a self-sufficient in food. That's important here. In 1991, Indian government adopted by the new economical policy, globalization, privatization and liberalization. That's important here. In 1991, Indian government adopted to the new
इकोनॉमिकल पॉलिसी है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. It's help a lot of development and thus the planning leads to be Indian as a growth in the term of literacy, infrastructures and moreover in a GDP. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियोजित विकास की राजनीति. कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है. एनसीईआरटी सीबीएसई के रिगार्डिंग आधारित है और ये क्वेश्चन का महत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण है. क्योंकि देखा जाए तो यह क्वेश्चन साफ है कि भारत में नियोजित विकास के आरंभिक चरणों के परिणामों का आकलन करना है. कि भारत में जो नियोजित किया गया था विकास की आरंभिक चरण से उसका क्या परिणाम निकला, यानी भारत में नियोजित विकास का जो आरंभ किया गया था उसका क्या परिणाम निकला. तो क्वेश्चन को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है. जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक आप आंसर करने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाते हो. तो क्वेश्चनों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है. तो यहाँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि भारत में नियोजित विकास का जो आरंभिक चरण थे उसके क्या परिणाम निकले. देखा जाए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के भविष्य के विकास के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एक योजना समिति की स्थापना किया. और ये देखा जाए तो भारत का आज़ाद होने से पहले ही जो है योजना विकास की नीति को आरंभ किया गया. यानी देखा जाए तो 1938 में जो है 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के भविष्य के विकास के लिए एक योजना तैयार करने की योजना समिति की जो है स्थापना किया. और देखा जाए तो अप्रैल 1951 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास कार्यक्रम को अपना लिया. ये एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत ने नियोजित विकास कार्यक्रम को कब अपनाया था. तो ये तो बन गया था 1938 में ही, लेकिन जो इसको अमल में लाई गई अपनाई गई अप्रैल 1951 में अपनाई गई. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है. और यह महसूस किया गया कि नियोजित विकास की प्रक्रिया ने एक अच्छा आर्थिक विकास और भूमि सुधार तैयार किया. यानी जो नियोजित विकास का हमने यहाँ पर अनुसरण किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसने एक अच्छा आर्थिक विकास और भूमि सुधार तैयार करने का अपना एक प्लेटफॉर्म दिया. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है. देखा जाए तो भारत के आर्थिक विकास और भूमि सुधार की नींव के लिए नियोजित विकास से संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं जो हमारा परिणाम थी. तो उन परिणामों को एनालाइज करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा. तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या परिणाम हुआ और जो है नियोजित विकास के आरंभिक चरणों का. तो चलिए परिणाम पे हम नज़र डालें. तो यहाँ हमारे समक्ष परिणाम आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और देश के संसाधनों को सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना भी की. तो देखा जाए पहला परिणाम काफ़ी सुखद था कि 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और देश के संसाधनों को सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई. कहते हैं योजना आयोग ने विकास की प्रक्रिया शुरू की जिससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी और नए अवसर भी मिलेंगे. योजना आयोग का यहाँ पर देखा जाए तो मतलब बहुत ही साफ था कि भारतीय लोगों की जीवन स्तर में वृद्धि करना और नए अवसरों को जो है तलाशना ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी थी. देखा जाए तो मूल्य रूप से निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्य के अनुसार 1970 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना और संचार मानकों को 70% तक बढ़ाना इसका एक मुख्य उद्देश्य बन गया था. कि मूल रूप से निर्धारित दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुसार 1970 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना और संचार मानकों को जो है 70% तक बढ़ाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य था. पहली पंचवर्षीय योजना अपने साथ एक योजनाबंदी देश का युग लेकर आई जिसका कुल परिव्यय था देखा जाए तो 2249 करोड़ जिसके दो उद्देश्य थे. देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया कि
पहली पंचवर्षीय योजना अपने साथ एक योजनाबंदी देश के युग लेकर आई, जिसमें मुख्य तौर से जो था 2249 करोड़, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। देखा जाए तो हरित क्रांति जैसे क्रांति ने 75.6 मिलियन टन तक खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान हासिल किया। देखा जाए तो हरित क्रांति ने यहाँ पर बहुत बड़ी जो है कीर्तिमान हासिल किया, यानी 75.6 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का जो है कीर्तिमान हासिल करना काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर कहते भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और साक्षरता दर के मामलों में भी केरल मॉडल बहुत ही प्रभावित था। यानी देखा जाए तो केरल मॉडल जो अपनाई गई थी उसको काफ़ी सारे भारत में अपनाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखा जाए तो भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य और साक्षरता दर के मामलों में केरल मॉडल जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिहीन किसानों के बीच भूमि वितरण की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और परिणाम स्वरूप जो भूमिहीन किसानों के बीच भूमि वितरित की गई। इसके अलावा श्वेत क्रांति और नीली क्रांति ने देश के विकास को और भी आगे बढ़ाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके अलावा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति ने देश के विकास को आगे बढ़ाया। कहते 1990 में हमने मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसके कारण विकास की योजना में वृद्धि हुई और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी निवेश की अनुमति मिली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1990 में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और जिसके कारण विकास की योजना में वृद्धि हुई और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी निवेश की अनुमति मिल गई। उसके बाद देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, इसलिए भारत भोजन के मामलों में आत्मनिर्भर बना। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जहाँ पर कृषि के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य, प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया और इसलिए भारत जो है भोजन के मामलों में आत्मनिर्भर बन सका। कहते हैं 1991 में भारत सरकार ने नई अर्थव्यवस्था नीति यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को अपनाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं इससे विकास में बहुत मदद मिली और इस प्रकार योजना से सशक्तता, बुनियादी ढांचे और सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में भारत की वृद्धि हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इससे विकास में काफ़ी मदद मिली और भारत का देखा जाए तो योजना से साक्षरता दर और बुनियादी ढांचे और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अराइव हियर, डिस्क्राइब द वेरीफ द composition and function of the Planning Commission of India. You know that is an important question. Describe the whereif there is a composition and function of the Planning Commission of India. That's an important question for the exam view here. A composition of Planning Commission. First of all here, composition of Planning Commission. First of all here, the Prime Minister of India is the chairman of commission. The Prime Minister of India, the chairman of commission. The commissions has a deputy chairman. The commission has a deputy chairman. The finance minister and planning minister are the ex-office member of the commission. That's important. The finance minister and planning minister are ex-office member of commissions. The commission has a 4 to 7 full-time export of member. You know that the commission has a 4 to 7 full-time export members here.
balance utilizations of the country as resources. That's important here. The most effective and balanced utilization of the countries as resources. To determine priorities and the defined stage in which their plan should be carried out. That's important. And to be indicate the factor that related economical development here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियोजित विकास की राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के जो है एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है भारत के योजना आयोग की संरचना एवं कार्य के संक्षेप में हमें वर्णन करना है। भारत की योजना आयोग की संरचना कैसी है और इसकी कार्य क्या है। देखिए एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इस क्वेश्चन को जो है महत्व रखते हुए इसके जो है 4 पॉइंट ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। और ये आपको याद करना भी बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा कि भारत की योजना आयोग की संरचना और कार्य का जो है हमें बताना है। योजना आयोग की सबसे पहले संरचना की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के प्रधानमंत्री आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। ये योजना आयोग की संरचना है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है मेन होते हैं और ये आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। देखा जाए तो आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी पद रखा गया है, यानी आयोग में इसी संरचना के अंतर्गत एक उपाध्यक्ष भी होता है। इवन देखिए तो वित्त मंत्री और योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री और योजना मंत्री इस आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ का इसमें प्रावधान की गई है। तो ये संरचना है, तो आप समझ गए होंगे भारत के प्रधानमंत्री इसका मुख्य अध्यक्ष होते हैं। आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान किया गया है और वित्त मंत्री और योजना मंत्री जो है इस आयोग के जो है पदेन सदस्य होते हैं और इसमें 4 से 7 जो है पूर्वकालिक विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें सम्मिलित होती हैं जो सभी राय विचार पे अपना विचारधारा रखते हैं। आगे जो हमारे समक्ष आया है योजना आयोग के कार्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है कि योजना आयोग के कार्य क्या हैं। देखा जाए तो देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करना, उन्हें बढ़ाने की संभावना जांच करना, ये मुख्य आयोग जो योजना आयोग का कार्य है। तो यहाँ पर साधारण शब्दों में मैं बता दूँ कि योजना आयोग के जो है कार्य होता है कि वो देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का जो है आकलन करे, पता करे और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करे। आप ये बात से तो सहमत होंगे ही होंगे कि किसी भी देश के आगे बढ़ने में उसके संसाधन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और जिन देशों में संसाधनों की बहुत ही कमी है उन देशों में जो है काफ़ी विकास होने की संभावना बहुत कम जाती है। लेकिन विकास तब करती है जब सरकार की अच्छी नीति होती है। अब देखा जाए तो यह भारत में ये योजना आयोग के कार्य यही रखी गई है कि देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का जो है जांच पड़ताल करना और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशना। क्योंकि देखिए अगर संभावनाएं बढ़ेंगे तो देश में हर तरह की जो है बुराइयां ख़त्म होगी, इवन बेरोजगारी भी ख़त्म होगा और गरीबी भी ख़त्म होगा। इसलिए जो हमारे देश में है उसके बढ़ाने की संभावनाओं का जांच करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं कि देखिए तो देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना बनाना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजनाएं बनाना और योजनाएं बनाकर ही हम सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित कर सकते हैं। और ये कार्य है और ये कार्य योजना आयोग द्वारा होती है
कि हम संतुलित बनाने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। उसके पश्चात है प्राथमिकता निर्धारित करना और उन चरणों की परिभाषित करना जिनमें योजना के क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यानी प्राथमिकता निर्धारित करना किसी की कौन चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात की प्राथमिकता निर्धारित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और उन चरणों को परिभाषित करना जिसमें योजना आयोग क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। इवन देखें तो आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों को इंगित करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों को इंगित करना। इसका अर्थ यही हुआ कि जो आर्थिक विकास के अवरुद्ध कौन चीज़ ऐसा है जो आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन अवरुद्ध कारकों को पता करना और उसको इंगित करके जो है उस पर एक्शन लेना, ये योजना आयोग का सबसे प्रमुख कार्य होते हैं। तो यहाँ पर संरचना और कार्य आप बहुत ही आसान शब्द से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट वेयर द early initiatives taken by the planning commission for the build a new India? You know that is an important question here. The initiatives taken by the planning commission are, there is a build of new India. You know that is an important question. After the independence, India was suffering from a poverty, literacy rate was very low. You know that is the main problem for facing for the India here. Poverty, literacy rate was very low. But this problem of facing for the India this time, and therefore government of India passed a revolution and set up of the planning commission in March 1950. That's important here. Therefore the government of India is pass a revolution and set up of the planning commission March 1950. That's important period time here, that a revolution here the accepted here of government of India. The planning commission planned to the structure of development in terms of 5-year plan and mixed economic policy. That's important. The Indian government is accepted here 5-year plan and mixed economic policy here. The first 5-year plan imposes on the agriculture sector dams, irrigation facilities. That's important here. The first 5-year plan here imposes on agricultural sector dams, irrigation facilities here. It also increased the literacy rate. Its focus on saving and therefore the per capita income was increased. That's important. It was increasing our literacy rate. It is a focus on saving and therefore their per capita income was increased. The second 5-year plan focused on the industry development and infrastructural development. You know that is important. First 5-year plan is only here for agriculture, but second 5-year plan there are focus on the industry development and infrastructure development here, so that agriculture sector also grow to be a meet the demand of agriculture product in industry. You know that there is the most important here. They are part of one coin of two faces here, agriculture and industry. Industry and agriculture. The mixed economic policy India adopted the mixed economic policy. Mixed economic policy India adopted their mixed economic policy here. Therefore, the two sector, private and public, could do the better in development of India. You know that is important. Therefore, the two sector, private and public, could do better in the development of India. The state controlled there is heavy industries and provided to the industrial infrastructure and regulate the trade and some important interventions in the agriculture. And this all the build up a new India. That's important here. They provided to the industrial infrastructure, regulate the trade and some important interventions in the agriculture. This all build up a new India. That's important point here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 12वीं CBSE NCERT
के अंतर्गत है पॉलिटिकल साइंस, यानी देखा जाए तो हमारा जो है राजनीति विज्ञान का जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नए भारत के निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा की गई आरंभिक पहल क्या थी। यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल साफ है कि नए भारत के निर्माण। आप सोचिएगा कि भारत नया कैसे है। दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तो संसार में वो नया होता है, और देखा जाए तो अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा मिली, और उस समय जो कि 250 सालों से अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर दबदबा था और हमें गुलामी के जीवन व्यतीत करने पे मजबूर किया जा रहा था। और मैं बता दूं कि सिर्फ 10,000 अंग्रेज़ों ने हम करोड़ों की जनसंख्या वाले को जो है अपने इशारों पे नचाया। ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं 10,000 अंग्रेजी सैनिक ने हम करोड़ों से अधिक जनसंख्या के निवास करने वाले थे और हमारी ये दुर्दशा कर दी। ये बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है। कहते हैं जनसंख्या उस समय भी कहते हैं अरबों के आसपास था, और इतनी जनसंख्या, इतनी अधिक जनसंख्या को 10,000 सिर्फ सैनिकों ने हमारे देश पे कब्जा किया और हमें गुलामी की दास्तां की तरफ धकेला। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। कारण क्या था? कहते ये समय भारत नहीं थी। आज़ादी के समय जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय भारत जो था एक सामान्य था। न हमारे पास दूसरे देशों का कोई दबदबा था, न किसी दूसरे देशों का हमारा कोई अपॉर्चुनिटी थी। हम जैसे चाहें देश को हम मोड़ सकते थे। जैसे एक बालक होता है, बच्चे जन्म लेते, जैसे आप शिक्षा दोगे वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा। सेम वही होता है कि भारत उस समय आज़ाद हुआ था। हम जैसे मर्जी वैसे देश को जो है प्रगति कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हमें मिली हमने इसका फ़ायदा सही से नहीं उठा पाए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ भारत के निर्माण के लिए योजना आयोग बनाई गई, और योजना आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण पहल थी। और योजना आयोग ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी आरंभिक पहल की कि कैसे भारत को जो है विकास की रास्ता पर ले जाया जाए। और इसमें सबसे पहले नए भारत के लिए जो योजना आयोग ने कदम उठाया वो था, भारत के बाद, आज़ादी के बाद देखा जाए तो भारत की गरीबी से पीड़ित था। हर क्षेत्र में गरीबी की संख्या बढ़ी हुई थी। कहते हैं 50% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, और साक्षरता दर भी बहुत कम थी। अगर इसी बात को मैं आज के साथ तुलना करूं तो आप हैरान हो जाओगे कि भारत में आज़ादी के समय 50% से अधिक थी गरीबी रेखा, और आज भी वही स्थिति पैदा है। आज भी भारत में 50% से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आई है। वो सरकार का रिकॉर्ड है। अब सोचिए, क्या भारत में कुछ बदलाव हुआ है? आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि गरीबी पहले भी बरकरार थी, गरीबी आज भी बरकरार है। साक्षरता दर बहुत कम थी। हम ये बात करते हैं कि आज़ादी के समय चलिए गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, शिक्षा मुफ्त नहीं थी, बहुत कुछ थी जिसके कारण साक्षरता दर बहुत कम थी, लोगों में समझ भी कम थी। लेकिन क्या आज की तुलना आप कर सकते हो शिक्षा के स्तर का? क्या आज शिक्षा स्तर बहुत सुधरा है? आप तो कहिएगा कि सरकार ने बहुत सुधार किया है, 85% से अधिक शिक्षा का स्तर बढ़ाई है, और केरल में तो सबसे अधिक केरल शिक्षा है। केरल जो है देश बहुत सारे काफ़ी शिक्षित है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि सरकार ने क्या डेफिनेशन दिया है साक्षरता दर की, कि जो व्यक्ति किसी भी को लिख सके, पढ़ सके, समझ सके, उसको साक्षर कहा जाता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारे देश में 50% से कम बच्चे हैं जिनको लिखना पढ़ना समझना आता होगा, और 50 से अधिक बच्चे हैं जिनको लिखना पढ़ना समझना नहीं आता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि साक्षरता दर हमारे देश की उच्च है? मैं खुद इस बात को एहसास करता हूँ, और मुझे विश्वास है, आप अपने क्षेत्र में चले जाओ, आपको हर क्षेत्र में जो है बच्चे 10वीं तक भी होंगे लेकिन उनको पढ़ना लिखना समझना नहीं आता है।
तो सरकार जो है किस बात के लिए अपना पीठ थपथपा रही है और शिक्षा स्तर के उच्च स्तर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एक बार आप एडमिशन करवा लीजिए, आप पास होके ही निकलोगे। चाहे वो 4 साल में हो, चाहे 5 साल में, चाहे 10 साल में, आप कभी ना कभी ज़रूर पास होके ही निकलोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि बच्चे कंपार्टमेंट में जाते हैं, 1-2 में सप्ली दी जाती है, लेकिन फेल पूरी तरह से नहीं होती हैं। और वो बच्चा का अगर रिकॉर्ड पता करोगे पढ़ाई लिखाई में, तो उनको एक लेटर तक भी लिखने नहीं आएगा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम किस बात के लिए अपने आप को कहते हैं कि शिक्षा का स्तर भारत में उच्च है, आज भी उच्च नहीं है। और ये सब कहीं ना कहीं सरकार की जो है बेरुखी और सरकार की कमजोरी है। कहते हैं अगर देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जनता की स्टैंडर्ड लाइफ भी बढ़ेगा, उनकी सक्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन शिक्षा को देखा जाए तो सिर्फ आज के समय में राजनीतिक खेल बना दिया है, राजनीतिक खेल बना के रख दिया है। शिक्षा में लिखा होता है कि लालच बुरी वाला है, लेकिन हम लोग लालच में ही पड़े हुए हैं। कहते हैं जो मंत्री भ्रष्ट होते हैं उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, लेकिन हम उन्हीं मंत्रियों को चुनते हैं जो भ्रष्ट होते हैं। कहते हैं गुंडे लोगों को तो समाज में जगह ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हम गुंडे लोग को ही समाज में आदरणीय स्थान दे देते हैं। तो हमारी मानसिकता क्या है आप स्वयं समझ सकते हो। हम कैसे कह दें कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। हम जहाँ थे हम वहीं हैं। पहले भी कहते हैं बहुत से ऐसी दास्तां थी जहाँ भारत गुलाम हुआ। देखा जाए तो बहुत बड़ी दास्तां है, उसको बताना समय की बर्बादी होगी, आप स्वयं ही समझदार हो। कहते हैं इसलिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। मार्च 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना भी की गई। कहते हैं कि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया, मार्च 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना और मिश्र आर्थिक नीतियों के संदर्भ में जो है विकास संरचना को आगे बढ़ाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना और मिश्र आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विकास संरचना की योजना बनाई। और देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र और बांधों सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया गया। ये तो आप भली भांति याद ही होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए हर संभव कोशिश की गई थी। इससे साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई और इसमें जो है बचत पर जोर दिया गया, इसलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इससे साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई और इससे बचत पर जोर दिया गया और इससे प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास और ढांचागत विकास के ऊपर केंद्रित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी कहते हैं औद्योगिक विकास और ढांचागत विकास पर केंद्रित की गई थी, ताकि उद्योगों में कृषि उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी बढ़े। यानी उद्योगों में कृषि और उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी थी। देखिए अगर कोई उद्योग लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो कृषि से ही संबंधित होती है। ये तो आपको समझ होगा ही होगा कि कोई उद्योग लगाई जाएगी तो कृषि का ही अपना महत्वपूर्ण है कि कृषि के अंतर्गत ही उन्हें कच्चे रॉ मटेरियल मिल सकता है। और देखा जाए तो उद्योग और कृषि एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह नजर आती हैं। अगर मान लीजिए उद्योग नहीं रहेगा तो सामान आगे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कृषि नहीं रहा तो उद्योग नहीं चलेगा। यानी ये दूसरे पर डिपेंडेबल है। कहते हैं अगर ये नहीं रहेगा तो वो खत्म होगा, वो खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएगी। अगर उद्योग नहीं रहेगा तो कृषि को हम कैसे दूसरे मटेरियल में बदलेंगे, बात वही पड़ गई ना। इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मिश्र आर्थिक नीतियाँ भारत के मिश्र आर्थिक नीतियों को अपनाई गई है और मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसलिए भारत के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपना रहे हैं, जिसके कारण भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही बेहतर जो है कर सकते हैं। राज्य ने भारी उद्योग को नियंत्रित किया है और औद्योगिक बुनियादी ढांचा, विनिमय, व्यापार और कृषि में मुख्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्रदान भी की गई है। और यह सब एक नए भारत का निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट्स इम्पोर्टेंट। व्हाट वेर द मेजर डिफरेंस इन द अप्रोच
toward the development at the time of independence? That's an important question here. The major difference in the approach toward the development at the time of independence. You know that at the time of independence, development was about the becoming more like the industrialized countries of West to be involved with the breakdown of the traditional social structure as well as the rise of capitalism and liberalism here. That's important here. In this time, West involved with the breakdown of the traditional social structure as well as a rise of capitalism and liberalism. That's important. Modernization refers to be growth, materials, progress, and scientific rationality here. Modernization refers to growth, material, process, and scientific rationality here. India had to be model of modern development at the time of the independence into the consideration to be adopted. The liberal capitalist model like to Europe and the USA, and the socialist model like the USSR. That's an important point here. There are capitalist rules Europe and USSR as here model, and there are socialist model like the USSR. The India has two model on this period time, but not taken go ways through each and other. That's important here. There are USSR, a capitalist, and the socialist is the USSR, but it does not take both. A debate has been occurring regarding to the adoption of model of the development as a communist, socialist, and Pandit Jawaharlal Nehru support their socialist model to the effect bordered conscious to be development during the national movement. You know that's important here. Debate has been occurring regarding to the adoption of model developments as communist, socialist, and Pandit Jawaharlal Nehru support their socialist. Pandit Jawaharlal Nehru is not support the communist here. Pandit Jawaharlal Nehru support here the socialist model to reflect about it conscious to be a development during to national movement. Above mentioned intention clearly that the government made the priority to the poverty's evasion along with the social and economical redistribution here. Redistribution, that's important. The next year, at the same time, these leaders differ and debated here. You know that's important. At the same time, these leaders differ and debated here. Industrialization, first of all here, industrialization should be a preferred to the path. Industrialization should be the preferred path here. And the agriculture development should be take place. And rural poverty should be elevated. That's important. The agriculture development is industrialization and rural poverty. That's important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति विज्ञान का जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्व रखता है स्वतंत्रता के समय विकास के प्रति दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर क्या थे। विकास पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरफ बनने के बारे में था कि हम पश्चिमी देशों के औद्योगिक विकास की तरफ अपने आप को बढ़ाएं। इसमें पारंपरिक सामाजिक संरचना को टूटने के साथ साथ पूंजीवाद और उदारवाद का उदय भी शामिल था। यानी देखा जाए तो उस समय हमारी विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि हम पूंजीवादी और उदारवाद का उदय भी शामिल था और इस समय पूंजीवादी उदारवादी अपनी चरम सीमा पे थी। तो हमें किसी एक खेमे में जाना था क्योंकि पूरे विश्व जो था दो खेमों में बटी हुई थी, पूंजीवादी और उदारवादी। आधुनिकीकरण का मतलब यही होता है कि विकास और भौतिक प्रगति को वैज्ञानिक तर्कसंगता से हो। आधुनिकीकरण का मतलब ही होता है कि हम भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, विकास और वैज्ञानिक तर्कसंगता की तरफ आगे बढ़ें। आपको पता ही होगा कि आधुनिकीकरण का मतलब ही होता है कि हम वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन से किसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। स्वतंत्रता के समय भारत में आधुनिक विकास के दो मॉडल अपनाने योग्य थे। एक जो था आपको पता ही होगा कि यूरोप और अमेरिका के द्वारा बनाया गया था पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा जो था यूएसएसआर द्वारा यानी सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था समाजवादी मॉडल।
अब इन दोनों मॉडल के हमारे समक्ष थे, दोनों में से एक में जाना हमारे लिए ज़रूरी था, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों से अलग थलग अपने आप को जो है बढ़ाने की कोशिश की, जो हमारी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। कहते देखा जाए तो कम्युनिस्ट, समाजवादी और पंडित नेहरू के रूप में विकास के मॉडल को अपनाने के संबंध में बहस छिड़ गई थी। यानी कम्युनिस्टों और समाजवादियों और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकास के मॉडल पे जो है बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित की जाने वाली व्यापक सहमति को प्रतिबिंबित करने के लिए समाजवादी मॉडल का समर्थन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर हमारा जो था, हमने समाजवादी मॉडल को जो है अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं था कि हम पूंजीवादी को छोड़ दिए। हमने यहाँ पर जो अपनाया वो मिक्स अर्थव्यवस्था अपनाया, क्योंकि हम दोनों को लेकर चलना चाहते थे। हमारा दोनों विकास की तरफ जो है ध्यान था, इसलिए हम समाजवादी बेशक मॉडल को समर्थन में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इन्होंने जो है मिक्स इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था भारत की प्रगति के लिए। देखा जाए तो उपयोग इरादे के साफ हो गया कि सरकार ने सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण के साथ साथ गरीबी उन्मूलन को भी प्राथमिकता दी। सरकार का सदैव ही यही रहता है विचारधारा कि भारत से कैसे जो है गरीबी को ख़त्म करे, लेकिन ये बहुत बड़ा दुष्कर्म कार्य है। न आने वाला सरकार कर सकती है, न जाने वाला सरकार कर सकती है। ये तभी होगी जब सरकार का जो है मकसद साफ हो और लोगों में अपनी मेहनत की क्षमता अधिक हो और लोग जो है सही रास्तों पे चले और अपने इरादों को जो है खरे उतरे। कहते हैं गरीबी उन्मूलन कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। गरीबी तब सिमट सकती है जब लोग पढ़े लिखे समझदार बनेंगे और सबको जो है रोजगारी का अवसर मिलेगा। रोजगार का अवसर मिलेगा तो हर व्यक्ति शिक्षित रहेगा, समझदार रहेगा और आने वाला जनरेशन भी इसी प्रकार चलता रहेगा। तो सरकार को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा के स्तरों पर विकास करने की ज़रूरत है। कहते हैं किसी चीज़ को फ्री कर देना, किसी चीज़ से के कहते हैं शिक्षा मुफ्त कर देना। चलिए ये तो कार्य किया, अच्छी बात है, बट आपको पता ही होगा कि मुफ्त की चीज़ें कभी भी सुखदायक नहीं होती है, और शिक्षा तो सबसे बड़ी बात है। शिक्षा को सरकार ने फ्री किया है जनमानस के लिए, लेकिन कभी उन्होंने उसका जो है एनालाइज करके देखा है कि वो जिस स्कूलों में सरकारी फ्री किया है क्या उन बच्चों को ढंग से पढ़ाया जाता है? तो इस बात पर सरकार कभी जोर नहीं देती है, सिर्फ किताबी बातें और कागजी काम की जाती है। वास्तविकता यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती है। और सबसे बड़ी हैरानी और सरकार की सबसे बड़ी मार तो मैं कंप्यूटराइज जो आज के समय में EWS कोटा के लिए सिलेक्शन होती है, वो सबसे बड़ा घटिया बना दिया है। आप तो सरकार ने किस्मत के ऊपर भी फैसला नहीं छोड़ा है, अब कंप्यूटर के ऊपर फैसला छोड़ा है और कंप्यूटर में लिख दिया है कि जो बच्चे 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे उन सबको सेलेक्ट कर लो, और जो बचा खुचा 1-2 सीट बच जाएगा वो 3 किलोमीटर के दायरे वालों को दे दो। तो ये सब बहुत ही अजीब बात है कि पहले 0 किलोमीटर वालों को दी जाती है, फिर 1 किलोमीटर वालों को, फिर 3 किलोमीटर वालों को। अब सोचिए, इसमें तर्क लगाइए कि प्राइवेट स्कूल में आम गरीब के बच्चे अब कभी पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गरीबी बस्ती हमेशा अच्छे अच्छे स्कूल से 10 किलोमीटर दूरी पे रखा जाता है। सोच लीजिए कि भारत का भविष्य अब अंधकार में कैसे जा रहा है, और इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि हमेशा मंत्री लोग के बच्चे जो होते हैं हमेशा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, और जब ये पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे होते हैं। और आम गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट काम करते हैं, किसी के दुकान पे जाके। ये कैसी विडंबना है। अगर सरकारी स्कूल में इतना ही अच्छे से पढ़ाई होती है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्री हो, उसका बच्चा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है
अगर आपको शायद किसी मंत्री का नाम पता हो जिन्होंने अपनी सारी शिक्षा बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में दिलाया है, वो भी मंत्री बने हुए रहते हुए, ये नहीं कि पहले सरकारी में पढ़ रहे थे जब मंत्री बन गए तो प्राइवेट में डाला, ऐसा नहीं, मंत्री होते हुए अगर जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, अगर आपके कोई नज़र में हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि ऐसे महान व्यक्ति का मैं नाम भी जानना चाहूँगा जिसने अपने सारे जीवन में मंत्री होते हुए भी सरकारी स्कूल का जो है इज्जत सम्मान किया और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। अगर ऐसा है तो अगर सच्चा देशभक्त हो तो कमेंट जरूर करना, और कोई मंत्री का अगर नाम हो तो, नहीं तो मैं समझूंगा कि ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है। ठीक है, आगे देखिए तो कहते हैं वही इन नेताओं में मतभेद और बहस हुई। देखा जाए तो नेताओं में मतभेद और बहस आजकल के जो है एक अच्छी से रणनीति बन गई है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड होती है कि आपस में पार्टियां लड़ती झगड़ती रहती है और जनता को खुद से बेहतर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब कहते हैं जब पार्टी नहीं बन रही होती है तो दुश्मन को भी गले लगा के पार्टी बना लेती हैं और एक नया रास्ते पे चलना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर नेताओं में मतभेद क्या हुई? कहते हैं आज़ादी से ही भारत में मतभेद की सिलसिला बरकरार है। कहते हैं कोई भी नेता इसलिए नहीं बनता है कि हमने देश की तरक्की करना है, देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए हर समय षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते रहती हैं, और यही हुआ कि औद्योगिकरण पसंदीदा मांग होना चाहिए था। उस समय किसी का औद्योगिकरण पसंदीदा मांग थी और किसी का कृषि विकास का होना चाहिए, ये विचारधारा था, और किसी का था ग्रामीण गरीब को कम किया जाना चाहिए। तो सभी के अपने अपने मतभेद थे, अपने अपने विचारधारा थे, और इसी कारण से जो है आज तक भारत में डेवलपमेंट होने की संभावना जो है 0% ही है। आज भी गरीबी उतनी ही है और बेरोजगारी भी उतनी ही है, शिक्षा का स्तर भी उतनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट। State the main agreement in the debate that ensued between the industrialization and agricultural development at the time of the second 5-year plan. That's an important question for the exam view here. The industrialization and agricultural development at the time of second 5-year plan. The debate here. You know that that's important. At the time of second 5-year plan, some controversial issue rose in a reference of relevancy of agriculture over industry. That's important here, controversial here issue of second 5-year plan there. A second 5-year plan emphasis on industry in a place of agriculture are the rural India. That's important. First 5-year plan, there is a only fair here issue for the agriculture, but second 5-year plan emphasis the industry in place of agriculture, but second year there is a industrialization, and J.S. Kumarappa and Gandhian economists propose an alternative blueprint to the emphasis of the rural industrialization. Second 5-year plan main base of the rural industrialization here, and there is a main thought here. J.C. Kumarappa and Gandhi economists propose alternative of blueprint for the rural industrializations here. Others debated that without any increasing of industrial sector, poverty could not be alleviated here. You know that India plan did not we have a agrarian struggle to be a boost the production of food grain. It also proposed a program of community development spend large sums of irrigations project, and failure was not with that of policy but of its unknown implementation because of the politics of land owning classes here. That's an important point here. It is a proposed that a program of community development spent a large sum of regulations project, and failure was not to be policy but it is a non-implementation because of the politics of land owned classes. And besides, they have also agreed that if the government had spent more money on agriculture
and it would be not have solved the massive problem of our rural poverties. That's an important point here. There is a debated here in this point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नियोजित विकास की राजनीति, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ चैप्टर है। क्लास 12वीं CBSE NCERT पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का जो हमारा है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतिम क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय औद्योगिकरण और कृषि विकास के बीच चली बहस का तर्क बताएं। आपको पता ही होगा कि हमारे समक्ष देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी वो कृषि पे आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी औद्योगिक पे आधारित थी। अब यहाँ पर जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई औद्योगिकरण के रिगार्डिंग तो औद्योगिक और कृषि के बीच एक बहुत बड़ा बहस छिड़ गया क्योंकि 5 वर्ष में कृषि में इतना डेवलपमेंट नहीं हो सका जितना हमने सोचा था। तो जर्नल सी बात है, बहुत से लोग इस पे बहस करने लग गए कि हमने पहली पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह सफल हुआ नहीं, कि हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के जो है पीछे पड़ गए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा सवाल था वहाँ के समर्थकों में और बड़े बड़े जो है विशेषज्ञों में कि हम आखिर जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम कृषि को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं। और ये सब बहुत बड़े इंपॉर्टेंट तर्क थे। कहते दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय उद्योग की तुलना में कृषि की प्रसंगता के संदर्भ में कुछ विवादास्पद मुद्दे उठे क्योंकि कृषि उस समय उसी तरह से प्रफुल्लित नहीं हुई जितना होना चाहिए था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि या ग्रामीण भारत के स्थान पर उद्योग पर जोर दिया गया। सबसे पहली बात तो यही थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के जगह पर जो है उद्योग पर जोर दिया गया। उस समय गांधीवादी और शास्त्री JC कुमारप्पा ने ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर देने के लिए एक वैकल्पिक खाक प्रस्तावित किया क्योंकि गांधी जी ये विचारधारा रखते थे कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और जो है वास्तविक जो लोग भारत के बसते हैं वो गांव में ही बसते हैं। ये बात गांधी जी का विचारधारा था और गांधी जी के विचारधारा के कारण JC कुमारप्पा ने इसी बात का समर्थन किया। कुमारप्पा ने ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर देने के लिए एक वैकल्पिक खाक प्रस्ताव रखा कि औद्योगिक पर हमें जोर देना चाहिए लेकिन हमें कृषि को जो है पछाड़ना नहीं चाहिए। भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह ने भी टिप्पणी की कि ग्रामीण कल्याण की कीमत पर शहरी और औद्योगिक वर्गों में समृद्धि पैदा करने वाली योजना है कि जो हम औद्योगिक विकास की तरफ जा रहे हैं उसका एक ही मतलब है कि हमने ग्रामीण कल्याण को जो है पीछे छोड़ दिया है। और ये भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह का साफ विचारधारा थी और ये महत्वपूर्ण भी था। कहते हैं एक नीति सफल हुई नहीं कि हम दूसरे नीति की तरफ आगे बढ़ गए। हमारे देश में आज भी यही प्रोग्राम चल रही है। हमारा एक नीति सफल होती नहीं है कि दूसरा सरकार की नीति सामने खड़ी हो जाती है। ये बड़ी बड़ी विडम्बना है। पहले एक को दूसरे शख्स का रूल को लागू कीजिए तब दूसरे का अनुसरण कीजिए, लेकिन अगर आप एक के बाद एक रूल रेगुलेशन चेंज इतना जल्दी करते जाओगे ना तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और लोग परेशान हो जाते हैं। कहते लोगों को परेशान करना आजकल की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बन गई है। आए दिन रूल रेगुलेशन को चेंज करना, आए दिन करना। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि पंचवर्षीय योजना जो थी पहले तो सफल हुई नहीं इतना अधिक और दूसरा लेके आ गए वो भी औद्योगिकरण के लिए। तो जनरल सी बात है गाँव का जो है अनदेखा करना। यहाँ पर इसी बात के ऊपर बहस चलती रही। देखा जाए तो अन्य लोगों ने बहस की एक औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के बिना गरीबी कम नहीं की जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बहस थी कि लोगों ने बहस की कि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि के बिना हम गरीबी कम नहीं कर सकते, लेकिन ये बात गलत है। अगर हम भारत में अगर गरीबी कम करना चाहते हैं तो हमें कृषि के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कृषि में जितना उत्पादन होगी उद्योगों में उतना उत्पादन होगा और कृषि में अगर उत्पादन हुआ तो इसके लिए बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर इसको हम भेज सकते हैं और वहाँ से जो है हम अच्छे खासे भारत में जो है डॉलर ला सकते हैं। तो इससे जो है भारत में गरीबी भी कम होगी और भारत के लोग जो है विकास भी करेंगे, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। आज से भी, पहले से भी और फ्यूचर में भी यही कहलाएगा,
क्योंकि हम कृषि पे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हमारा पूरे विश्व में है और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो इस पे बहुत बड़ी बहस थी कि बहुत से लोगों का विचार था कि जब तक हम औद्योगिक विकास नहीं करेंगे हम गरीबी कम नहीं कर सकती, लेकिन ये तो सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी, राजनीतिक डिबेट थी, बहस थी। कहते भारत की योजना में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई कृषि नीति नहीं थी, कि भारत की योजना जो बनाई गई थी उसमें खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि के संबंधी कोई भी रणनीति तैयार नहीं की गई थी, यानी कृषि को छोड़ दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और इससे समुदाय विकास के कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए। देखिए समुदाय विकास के कार्यक्रम भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है प्रस्तावित किया गया और सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च की और विफलता नीति नहीं बल्कि भूमि स्वामी वर्गों की राजनीति के कारण इसके कामयाबी में विफलता थी। यानी देखा जाए तो बेशक सरकार ने यहाँ परियोजना पर बड़ी रकम खर्च की लेकिन ये विफल रहा और सारे के सारे जो फ़ायदा थे जो बड़े बड़े भूमि स्वामी थे उनको ये प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि सरकार ने कृषि पर अधिक पैसा खर्च किया होता तो इससे ग्रामीण गरीबी की व्यापक समस्या का समाधान नहीं होता। अब यहाँ पर सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने बहस है। कहते हैं विचार रखना सबका प्राथमिक दायित्व होती है, अपना अधिकार है, लेकिन जो बात सही है उसी पे अनुसरण किया जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि हम किसी बात को एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें कि कौन सा चीज़ें कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और कैसे ये विकास के अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा था चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत यानी पॉलिटिकल प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन किए हैं वो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर समझदार बच्चे वो करेंगे जो करना चाहिए, नोट करेंगे, समझेंगे, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम तक आपके पास शायद ना भी रहे। कहते हैं तो यूट्यूब पे जब मर्जी देख सकते हो, उसको कोई बुराई नहीं है, लेकिन कॉपी पे भी नोट करना फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, इसलिए कॉपी पे नोट कीजिए, से अक्षरों का भी सही मार्गदर्शन होता है, क्योंकि लिखने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इसलिए अक्षरों को नोट कीजिए, सोचिए नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए दोस्तों कहते हैं जहाँ समझ आए वही बात सही है और त्रिपाण चंद्र एक सीरीज वाइज चलता है आपके लिए, हर क्षेत्र में हर जगह आपके लिए ही कार्यरत है। कहते हैं आपने देखा ही होगा कि हर क्लास के बच्चों के जैसे जैसे डिमांड रहते हैं वैसे वैसे मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, कभी 8th का, कभी 9th का, कभी 10th का, कभी 12th का, कभी BA का, कभी MA का। तो जर्नल सी बात है, ये आपके लिए ही त्रिपाण स्टडी सेंटर है। जो समस्या आएगी उसको कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, हम आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी भी कमेंट जो बच्चे करते हैं उनसे मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ, चाहे वो जो मर्जी मुझे कहें, इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ इतना बात से फ़र्क पड़ता है कि आप देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है दूसरे बच्चे से शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं करते हो तो मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिसे आपको समझ में आ गया उसे दूसरे बच्चों को भी समझ में आ जाना चाहिए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। ये विचार काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसे सोचना नहीं होता दोस्तों, जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन में बना रहना चाहिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। देखिए कहते हैं ना, हेल्प करने का एक छोटा सा साधन है। मैं जानता हूँ कि अगर आपको ना पसंद हो तो मत कीजिए। कहते हैं जो पसंद आए वही कार्य करना चाहिए, लेकिन ये पढ़ाई का सतर है, शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा को माध्यम जो है शेयर करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलत चीज़ें अगर शेयर कर रहे हो तो इसमें ज़रूरी हिचकिचाहट होनी चाहिए, क्योंकि युवक उसको काफ़ी प्रभावित भी कर सकता है, लेकिन वीडियो नहीं प्रभावित करता। अगर ये वीडियो शेयर करते हो तो उनको अगर समझ में आएगा तो रखेंगे बच्चे, नहीं है तो जनरल सी बात है, लीव कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे। कोई इसमें ज़बरदस्ती की सवाल नहीं उठता है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन चाहते हो कि और भी आपको प्राप्त होता ही रहे, क्योंकि आपको तो पता है कि समय समय पर हर वीडियो बनता रहता है। और ये प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहते हैं 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो उपलब्ध है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इतने सारे वीडियो, इतने सारे क्लास के, समझिए 8 से लेकर MA तक बच्चों यहाँ जुड़ सकते हैं और जुड़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।